Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 4. In this lecture we will discuss some factors which affect thermal analysis results. Many analytical methods give a result that is specific to the compound under investigation. For example, the infrared spectrum of polystyrene is characteristic of that material and depend little on the sampling method or instrument or the time taken to perform the run. कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि बहुत कम उनके सैम्पलिंग पे या इंस्ट्रूमेंट पे या किस टाइम हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कुछ जो थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस है उसमें ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके सैम्पल साइज़ कितना है, सैम्पल कंपोजिशन क्या है और इसी तरह हीटिंग रेट कितना है और जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है उसकी कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ने देखा होगा कि चूँकि थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम हीटिंग जो है वो इन्वॉल्व है, हम इन्वॉल्व करते हैं हीटिंग, तो हीटिंग जो है बहुत सारे रिएक्शन जो है वो हीटिंग की वजह से होते हैं। मैक्सिमम रिएक्शंस टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीटिंग। तो इसमें ये फैक्टर जो है बहुत एक अहम रोल अदा करते हैं। तो इसलिए उस फैक्टर्स को हम जो है वो कांस्टेंट रखने होते हैं और उस फैक्टर को हम कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्ट ना हो जाए। Many thermal methods are much less compound specific and the result obtained may depend upon the condition used during the experiment. कि थर्मल मेथड्स में जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है that are very important because due to which the results is changed. So we should control these parameters or these factors. The reason for this will become apparent in later discourse but may briefly be summarized as due to the dynamic nature of the process involved. ये फिगर 1 है, अब इसको हम देखेंगे। The signal generated by the sensor will depend on the extent and the rate of reaction, the extent and the rate of change of the property measured. ये एक टिपिकल डायग्राम है जहाँ थर्मल इवेंट्स वाक़या होती है। ये फर्नेस है, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये दिस शोज़ द फर्नेस और ये सैंपल पड़ा हुआ है, इधर ये गैस है। अब आप लोग देख रहे हैं कि कुछ डैश एरोज़ है और कुछ सॉलिड एरोज़ है। ये दिस इज़ डैश एरो, दिस इज़ डैश एरो, दिस इज़ सॉलिड। The dynamic nature of a thermal analysis experiment showing the flow of heat dash line जो हमें ये flow of heat है and the gas is solid line plus the process of sample reaction कि this indicate the sample reaction and this arrow indicates the flow of the gases during the experiment. The transfer of heat by conduction, convection and by radiation around the apparatus and the interaction of the surrounding
with the sample all affect these changes. ये there are three processes due to which the heat is transferred from one body to another या from one place to another. उसमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है. ये तीनों processes है due to which heat transfer from one body to another. और कन्वेक्शन जो है वो कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर by movement of a heated fluid such as air or water. तो वो कह रहे कि फ्लो ऑफ हीट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग और सैंपल जो है उसकी नेचर पे. इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल whenever a thermal analysis experiment is reported that the precise condition used are included in the report. जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं थर्मल मेथड, तो उसमें ऑल थर्मल कंडीशन जो हमने अप्लाई किया हुआ होता है वो हम मेंशन करते हैं कि इसका हीटिंग फ्लो कितना था, किस रेट से हमने उसको हीट किया था, कौन से रेफरेंस मटेरियल हमने यूज़ किए थे, और इसी तरह और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है वो हमें सब जो है वो मेंशन करने पड़ते हैं ताकि दूसरे लोगों को आसानी हो कि हाँ ये जो है ये कंडीशन इन्होंने अप्लाई किया है और इनका रिज़ल्ट यही आ रहा है. सिमिलरली comparison of samples should only be made when their curves are run under the same condition or when differences in condition are clearly stated. The main factors which must be considered and reported for every thermal analysis experiment are given below. So there are some factors which are very important in thermal analysis. So we will discuss all these factors one by one. अब उसमें जो है द सैंपल, सबसे पहले तो सैंपल जो हम सैंपल लेते हैं कहाँ से कलेक्ट किया है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये सारे कंडीशन जो है हमें मद्देनज़र रखने हैं. द केमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैंपल शुड बी गिवन टुगेदर विद इट्स सोर्स एंड प्री ट्रीटमेंट, कि कहाँ से हमने कलेक्ट किया है और हमने कौन कौन से ट्रीटमेंट इनके साथ किया है बिफोर एनालाइजिंग द सैंपल. इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टेट इट्स प्योरिटी, chemical composition and formula if these are known. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो प्योर हो, केमिकल कंपोजिशन और फार्मूला क्या है अगर वो चीज़ हमें मालूम हो. If the sample is diluted with another substance such as an inert reference material, then the composition of the mixture should be given. कि हमने अगर कोई डायलुएंट यूज़ किया है जिस किसी और चीज़ से हमने डाइल्यूट किया है तो उसका कंपोजिशन का भी पता होना चाहिए. This diluent can greatly alter the thermal conductivity of the sample. क्यों? इसलिए कि जो डाइल्यूएंट हम ऐड करते हैं इट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल, और जो कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल जब अफेक्ट हो जाए तो रिजल्ट विल बी आल्सो अफेक्टेड. इवन द पार्टिकल साइज may alter the shape of the curves, especially where a surface reaction is involved. पार्टिकल साइज भी अहम है. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये एक एग्ज़ाम्पल जो है दिया गया है. All of these factors could affect thermal analysis curve.
A change in the chemical composition would alter the decomposition of a copper sulfate sample, as would a change in purity. तो chemical composition जो है that should be also changed when decomposition of the copper sulfate occur. The diluent will alter the heat transfer characteristic and the shape of the corrosion जो हमने already पढ़ा है. The history of the sample and the possibly its method of preparation can affect the corrosion. कि हिस्ट्री ऑफ द सैंपल क्या है वो भी रिजल्ट को अफेक्ट कर लेता है. ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज कैन कैटलाइज डिकम्पोजिशन और काज डिफरेंट रिएक्शन सीक्वेंसेस. अगर कोई ट्रेस इम्प्योरिटीज भी मौजूद है सैंपल में तो वो भी रिजल्ट को इफेक्ट कर लेता है. ये तो हमने सैंपल के बारे में पढ़ा. अब दूसरा फैक्टर जो है वो क्रूसिबल है. जिस कंटेनर में हम सैंपल रखते हैं तो वो मटेरियल जो है वो इनएक्टिव होना चाहिए. वो उस सैंपल के साथ उसका इंटरएक्शन नहीं होना चाहिए रिएक्शन कंडीशन में, क्योंकि बहुत सारे जिस चीज़ से क्रूसिबल बनाए जाते हैं तो वो मटेरियल जो है ज़्यादातर मेटल्स होते हैं और वो इट कैटलाइज्ड इट डिकम्पोज द सैंपल, इट ऑक्सीडाइज द सैंपल इन most of the cases. So we should taken those materials which are inert in the experimental conditions. The material of the sample holder or crucible should be stated together with a guide to its geometry. Even उनकी geometry भी कि वो किस किस्म का शेप है उस कंटेनर का, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्रूसिबल शेप्स में, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सैंपल होल्डर्स आर चूजन बिकॉज they will not interact with the sample during the course of the experiment. जिस तरह मैंने पहले कहा है कि उसका इंटरेक्शन सैंपल के साथ नहीं होना चाहिए. However, changing from aluminum to platinum or to silica or alumina may will alter the heat transfer because of the different thermal conductivity and the possibly the chemistry of the process. For example, if a reaction occurs that could be catalyzed by platinum and we are using a platinum crucible. अब ये कुछ मटेरियल है, अब एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, सिलिका है, एल्यूमिना है. These are the constructing material from which different crucibles are constructed. So इसमें से कुछ मटेरियल जो है वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, तो ये भी रिजल्ट को जो है अफेक्ट कर लेता है. इसलिए हमें उन क्रूसिबल के मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमें रिजल्ट के वेरिएशन का भी पता हो कि ये इस वजह से है. तो इसलिए इन मटेरियल के मुतालिक जानना भी ज़रूरी है. The geometric shape of the sample holder is also important. यानी उस क्रूसिबल का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है या मतलब है कि वो स्क्वायर फॉर्म में है, टेस्ट ट्यूब फॉर्म में है. बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर्स है. इंशाल्लाह किसी लेक्चर में हम इनके सैंपल होल्डर की शेप के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो भी अहम है. सिंस ए शैलो वाइड होल्डर will allow free diffusion of reactant gases to the sample and the diffusion of the product gases
away while a narrow deep holder may restrict gas flow। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर हमारे पास एक शैलो वाइड होल्डर है तो उसमें जो गैसेस, चूँकि थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस में सैंपल को हीट किया जाता है और डिफरेंट गैसेस आर इवॉल्व, अब उसका फ्लो जो है अगर वो नैरो है तो उसमें फ्लो ऑफ द गैसेस इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, जबकि अगर शैलो वाइड है यानी प्लेट की तरह है तो फिर उसमें मूवमेंट ऑफ द गैसेस जो है वो इजी होगा। अब नेक्स्ट जो फैक्टर्स है डेट इज़ रेट ऑफ हीटिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच अफेक्ट द थर्मल रिजल्ट्स। तो हम इसको भी जो है ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सा हीटिंग रेट जो है वो सही है, कौन सा हमारे रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स may be carried out at heating rate from 0 Kelvin per minute that is under thermal condition through the normal rate of 10 Kelvin per minute to very high rate over 100 Kelvin per minute, which are some टाइम यूज टू सिमुलेट बर्निंग ऑफ मटेरियल्स। अब हमारे पास नॉर्मल रेट भी आ गया है और मैक्सिमम भी आ गया है और मिनिमम भी आ गया है। तो 0 से लेके 100 केल्विन पर मिनट इस रेंज में हमें हीटिंग करनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है डेट इज़ 10 Kelvin per minute, that is a normal flow rate of the heat। so normally जब हम heating करेंगे तो वो 10 Kelvin per minute जो है उस पे करेंगे, लेकिन बास केसेस में हम फ्लो रेट को बहुत स्लो कर लेते हैं, बास केस में हम उसको काफ़ी हाई कर लेते हैं। आप इंशाल्लाह किसी लेक्चर में पढ़ेंगे हाई रेजोल्यूशन TGA। ये एक टेक्निक है जिसमें हम जहाँ थर्मल इवेंट नहीं होता उसमें हम हीटिंग रेट जो है वेरी फास्ट रखते हैं, और जहाँ थर्मल इवेंट अगर होता है तो वहाँ पे हम जो हीटिंग रेट है डेट इज़ वेरी स्लो, और फिर उसके बाद जहाँ हीट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता ऑन द सैंपल फिर हम हीटिंग को वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब उनकी दो वजूहात हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा जब हम कोई वाक़या हो जाता है तो अगर उसको कैमरे ने कैप्चर किया है तो वो वाक़या जब हो रहा है तो उस वाक़े को जहाँ वारदात या कोई भी हुआ है उस टाइम हम बड़े जूम कर लेते हैं, यानी उसको बड़ा चढ़ा के वो कैमरे से जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, और फिर जो है उस इवेंट यानी वो जहाँ वो हो जाता है उस टाइम उसको हम उसका जो रेट है वो स्लो कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइमिंग है वो सेव हो जाए। तो ये इसलिए जो है अब हमारे पास 3 किस्म के फ्लो रेट आए हैं, 0 है, 10 है और 100 है। इसके अलावा भी हम ले सकते हैं, कोई मतलब है कि इसमें लेकिन ये उन्होंने एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन हमें दिया है कि ये बहुत हाई है, ये बहुत शॉर्ट है और ये दरमियाने वाले। Similarly, experiments may be conducted with different cooling rate।
जिस तरह हम हीटिंग रेट करते हैं इसी तरह कूल भी हमें डिफरेंट रेट पे करते हैं. सिंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ फिजिकल चेंज and of most reaction are definite sorry finite, the sample will react differently at different heating rate. तो ये इन्होंने एक समरी जो है हीटिंग रेट की बयान की है कि सिंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर of physical change and of most reaction are finite, कि वो महदूद होती है. तो इसलिए जो हीट ट्रांसफ़र है फिज़िकल चेंज में और केमिकल रिएक्शन में वो फिनाइट होता है. तो इसलिए द सैंपल विल रिएक्ट डिफरेंटली एट डिफरेंट हीटिंग रेट. ये इसका एक आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. घरों में जब हम दूध गरम करते हैं, बॉयल करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली हम बहुत जो बर्नर है, जो स्टोव है, उसका वो बहुत तेज़ कर लेते ताकि जल्दी जल्दी हीट हो जाए. लेकिन जब वो बॉयलिंग के करीब हो जाती है तो फ्लेम को कम कर लेते हैं. तो ये इस क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो और हम जो काम करना चाहते हैं यानी बॉयलिंग ऑफ मिल्क, तो वो भी हमें जल्दी हासिल हो जाए. तो एक तो टाइम सेव हो जाती है, दूसरा हमारा मकसद भी पूरा हो जाता है. ये एक सिंपल सा एग्जांपल है. तो इसी तरह जो हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में वो स्पेसिफिक होता है, वो एक महदूद होता है. तो इसलिए केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हीटिंग स्टेज पे हो जाती है. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द source such as the furnace and the different part of the samples or reference material is not instantaneous, but will depend on the conduction, convection and radiation that can occur within the apparatus. ये भी इन्होंने हीट ट्रांसफ़र के बारे में कहा है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द सोर्स, जो हमारा सैंपल है, और फर्नेस है, यानी फर्नेस है, सच एज फर्नेस एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सैंपल और रेफरेंस मटेरियल इज नॉट इंस्टेंटेनियस बट डिपेंड्स ऑन द कंडक्शन, convection and radiation which are the sources of the transferring of the heat that can occur within the apparatus. तो ये भी इसलिए अहम है रेट ऑफ हीट जो है. There is bound to be a thermal lag between different parts of the apparatus, and the higher the rate of heating, the greater this lag is likely to be. ये भी यानी अब उसकी वजह बताती है कि रेट ऑफ हीटिंग हम क्यों मेंशन करते हैं, या हम क्यों मतलब है कि उसको फिक्स्ड रखते हैं, या उसको क्यों मद्देनज़र रखते हैं, उसका ख्याल क्यों रखते हैं ड्यूरिंग थर्मल एनालिसिस में. तो देयर इज़ बाउंड टू बी ए थर्मल लेग, कि एक थर्मल लेग होती है या एक सेपरेशन होती है, ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन वन इवेंट एंड अनदर. इसको कहते हैं लेग, कि दो चीज़ों के दरमियान जो डिस्टेंस या जो इवेंट जो टाइम होती है किसी चीज़ की अकर होने का,
तो उसके बारे में कहता है between different parts of the apparatus and the higher the rate of the heating, कि जितना रेट ज़्यादा होगा उतना ही द ग्रेटर वो लेग भी जो है वो उतना ही हाई होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को चाहे वो सैम्पल है, चाहे वो क्रूसिबल है, चाहे वो रेट ऑफ हीटिंग है, इन सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है। ये कुछ ही पैरामीटर्स है। इसके बाद भी कुछ पैरामीटर है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द लेक्चर नंबर 4, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल एनालिसिस रिजल्ट्स। तो इसमें हमने 3 पैरामीटर या 3 फैक्टर्स जो है उसको डिस्कस किया है और उसको मतलब उनकी अहमियत जो है वो हमने इधर एक्सप्लेन किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।